क्योंकि वो लोग फैसिनेटेड हैं सुष्मिता सेन से। एक रील चलेगी, वो मैडम ऐसे आएंगे, वो चौक लेंगी, फिर मैम बाल लहराएंगे। कोई एक्टर बुरा नहीं होता है, किसी कोई एक्ट्रेस बुरी नहीं है। मैं आज बता रही हूँ, कोई पॉलिटिशियन बुरा नहीं है। अभी आपका मेरे साथ पॉडकास्ट होगा और आपका भी एक सभ्य सुशील लड़की जो कि अपने आप को पूरा कवर करके सारी कंट्रोवर्सी से दूर रहेगी, आपको उसके साथ पॉडकास्ट करने में मज़ा आने वाला है या मेरे साथ मज़ा आने वाला है? क्योंकि एक सिर्फ मेरा एक जवाब देना, आप एक वुमन को कैसे चुप करा सकते हैं? Oh my God, students will get distracted if a male is hot like you. We always red flag. जितना red flag उतने टेंशन कम, उतने relatives कम, उतने से आप पे कम. We always red flag. First of all, Priya ma'am, finally, thank you so much for coming here. On behalf of the whole team AP podcast, we are extremely grateful that you came here. Traveling in a place like Delhi is itself a big challenge. So kudos to that and thank you so much for being with us. Thank you so much, sir, for calling me, giving me my voice and all. That's actually a pleasure for me. I am extremely humbled at the moment because I still remember I had seen you first time when I was in 10th standard. Achha. So, are you kidding me? Yeah. I know you from that time because like these people are my team members are from pure arts background. Okay. I'm from non-med background. So sometimes for some bio lectures I used to refer to your lectures at some stage. So I have been watching this. So it's like, what can I say? You were in 10th, right? Yeah, I was in 10th. So it's like, what can I say? A big checklist for me to interact with you and finally do a podcast with you. Yeah. So for the starting, ma'am, there could be many things that we could start with, but I want to start with something, that I believe holds a very good sort of values when it comes to both online and offline education. And आप उस genre से belong करते हैं जिसने दोनों sort of चीज़ें देखी है. And at this young age, I guess you have built a very good student base everywhere, both on offline and online level. So what do you feel is the value of the connection between student and a teacher? Sir, there's two things that I will tell you at that point. आज के टाइम पे students don't want to study with the old people. I will not say people, the old teachers. Because first of all कि सर हर समय NCERT बदल रही है. वो जो एज है ना, वो अपग्रेड नहीं होना चाहती है. हम क्या है कि अभी फ्रेश होके आते हैं, लाइक फ्रेश हो गए कि फ्रेशअप है हमारे दिमाग में, माइंड सेटअप है कि अभी हम क्या पढ़ के आ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं. सो हमारे अंदर क्या होता है, एक्सट्रीम पावर होती है या एक्सट्रीम शॉर्ट ऑफ एनर्जी होती है. उस एनर्जी के साथ स्टूडेंट कनेक्ट करता है. अगर आप किसी ओल्ड एज पर्सन को देखो या बहुत ज़्यादा ही नॉलेजेबल है या उसका थोड़ा सा एज है, तो स्टूडेंट उससे कनेक्ट नहीं होता. क्योंकि आज के टाइम पे जब से पेंडेमिक आया है, इतने सारे ऑनलाइन टीचर्स आ चुके हैं जो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश एनर्जी, यंग है. सो स्टूडेंट वांट टू कनेक्ट विद द एनर्जी, दे डोंट वांट विद द नॉलेज. वो पढ़ने में है, पढ़ सकते हैं, वो इससे पढ़ा उससे पढ़ा, लेकिन इन द क्लास एट प्रेजेंट दे वांट टू इन्वेस्ट द एनर्जी with the energy, and that we give them. So I will love to study with a person who is very young, who want to teach. Old age people do come, teachers, take the salary and go. I believe me, there are very few people who are not like, who are there into age but still do something for student. They're just there 31st का वेट कर रहे होते हैं, पैसे आए अकाउंट में, पढ़ाया चले जाए. हमारे अंदर एक पावर होती है और हमारे अंदर जुनून होता है, इससे कम्पिटिट करना है, इससे कम्पिटिट करना है, इससे कम्पिटिट करना है. राइट नाउ यू आर डूइंग द पॉडकास्ट, यू मस्ट हैव द प्रॉब्लम कि यार उसके जैसा बनना है, उसके जैसा बनना है. अभी कोई एक इंसान होगा जो गंभीर हो गए, फलाना हो गया, मैं उससे नहीं समझूंगी या मुझे उससे इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा. मैं किनको देखूंगी, यंग एनर्जी. दैट्स व्हाई आई केम टू योर पॉडकास्ट, राइट, rather than going somewhere else. Thank you so much. Because I found that energy. तो एनर्जी मैटर्स. एंड सेकेंड थिंग, हमें पता होता है कि जब हम स्टूडेंट थे तो हमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है, तो हम भी वैसा ही टीचर प्रेफर करते हैं. यार ये अपने जैसा पढ़ाते हैं, जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आती है ये सर उस या ये मैडम उस पे ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. सो वी गेट कनेक्टेड. यार ये टॉपिक जो कभी नहीं समझ में आया, प्रिया मैम ने वो समझा दिया, तो माई नॉट टू स्टडी विद प्रिया मैम. सो दैट्स हाउ वी डू. अभी हमें जहाँ पे प्रॉब्लम होती है, पुराने ज़माने के लोगों ने तो नीट नहीं दिया,
नहीं दिया, राइट? हमने हमारे टाइम पे नीट शुरू हुआ, मैंने भी नीट दिया था, तो मुझे पता है कि नीट में बैठने के टाइम पे क्या कंफ्यूजन होती है, कहाँ पे कौन से क्वेश्चंस पे रुकते हैं, कौन सा एरिया हार्ड है, हम उस एरिया को पकड़ते हैं, बच्चों को उसी के बाद पॉलिश करते रहते स्टूडेंट गेट कनेक्टेड. एंड थोड़ा जेंजी एरिया, यू नो, जनरेशन गैप डिफिकल्ट होता है, बट हम ऐसा नहीं, हमारे साथ उनको ऐसा जनरेशन गैप फील होता. दे अंडरस्टैंड अस एज अ not teacher, like a sister, like a friend, so that's how they connect, and I feel so that's why we are leading right now. How's the Gen Z thing coming up at the moment? Sometimes very hard to understand what exactly like you know they are going through, क्योंकि वो लोग fascinated हैं सुष्मिता सेन से. They are fascinated with Vidya Balan in the movie also, and आपको पता है कि आज के टाइम पे so there is a web series called as Mastaram or so वहाँ पे टीचर्स को बड़ी गलत तरीके से दिखाया गया है. Though I am a Susmita Sen fan, but I feel like that कि एजुकेशन जब आप टीचिंग में हैं या आप जब एक रूम के अंदर टीच कर रहे हैं, ग्लैमर शुड नॉट कम. मैं टीचर हूँ, जब मैं क्लास के अंदर हूँ, आई एम अ टीचर, राइट? आई एम नॉट शोइंग द ग्लैमर, बट व्हेन आई एम आउटसाइड द स्कूल और कॉलेज, आई एम Priya Pandey, who is into modeling, who is into acting, who is into living her life to the verge. डोंट गिव अ डैम कि क्या सोचो क्या नहीं. क्लास के अंदर हूँ तो आई एम एजुकेटर. सो व्हाट द राइट नाउ वेब सीरीज आर शोइंग, क्लास में कोई मैम आ रही हैं, वो पल्लू गिर रहा है, बच्चे लाइक खुश हो रहे हैं, ये दैट थिंग आई डोंट वांट टू गो. यू नो, यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये जेंजी के दिमाग में तुमने भर दिया है. एक रील चलेगी, वो मैडम ऐसे आएंगे, वो चौक लेंगी, फिर मैम बाल लहराएंगे. ऐसा नहीं होता. क्लास के अंदर यू हैव टू मेंटेन द डेकोरम. एंड आई फील लाइक दैट बच्चों के दिमाग में ये थोड़ा सा भरम भर चुका है with the web series so called you know. Did you sort of had any personal experience when it yeah came to of course experiences I had like this? I told you. So what was going on, I was there in the YouTube and मैं lecture पढ़ा रही थी. एक moment आया जब मैं साड़ी like इंडियन अटायर पहना था, साड़ी was like best thing for me. मैंने बहुत सारी साड़ी ऐसी पढ़ी है जहाँ पे फुल स्लीव्स ब्लाउज है, हाफ स्लीव्स ब्लाउज हैं, और कभी में तो लाइक यू नो लाइक मेरी स्लीव्स एंड एवरीथिंग. बट मेरी वीडियो वही वायरल हुई जहाँ पे मैंने 1 घंटे के लिए पढ़ाया है, वो स्लीवलेस ब्लाउज है, वो थोड़ा सा इधर उधर साड़ी का बल्लू 5-6 मिनट के लिए इधर उधर हुआ होगा, बच्चों ने कैप्चर किया या पता नहीं किसने कैप्चर किया, थंबनेल बन गया. सो मैं बोलती हूँ कि ऑनलाइन जो भी दिख रहा है वो ऐसा एक्चुअली होता है नहीं. सो पहले हम भी बहुत क्यूरियस थे, यार बिग ये नो बॉलीवुड में ऐसा होता होगा, ये ऐसा हो जाता है, ये ऐसा होता होगा. बाद में जब वो मेरे साथ हुआ तो मुझे समझ में यार ये तो सच में दुनिया एकदम अजीब है. जो हमें दिख रहा है वो होता नहीं है. लेकिन हमें पहले ऐसा लगता होगा यार ये ऐसा, मतलब ये मैम जैसे हम भी कभी देखते थे, यार ये प्रमोशन के लिए कितना घटिया काम किया इस लड़के ने या इस एक्ट्रेस ने, प्रमोशन के लिए किया होगा, ये किया होगा. अच्छा वो मेरे पे हुआ तो मैंने कहा शिट मैन, दिस इज नॉट एक्चुअली दे डू. The people do who just want fame or like some amount or so, you know, attraction, video पे views आए तो ऐसा करते हैं. So मुझे अब ना एक्ट्रेस से कोई प्रॉब्लम है, ना मुझे किसी पॉलिटिशियन से प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है वो जर्नलिस्ट से. मुझे प्रॉब्लम है वो कीड़े से जो ये गंदगी फैला रहा है. कोई एक्टर बुरा नहीं होता है, किसी कोई एक्ट्रेस बुरी नहीं है. मैं आज बता रही हूँ कोई पॉलिटिशियन बुरा नहीं है. ये जो मीडिया में लिखते हैं ना ये गधे, क्या जर्नलिस्ट या जो पे भी थंबनेल बना रहे हैं अपनी चीप पॉपुलैरिटी या पब्लिसिटी के लिए, जो ये सब गंदगी फैला रहे हैं, मुझे उनसे प्रॉब्लम है. बट लोग भी तो खराब है मैम, फिर कौन सा लोग खराब है? who are watching this sort of stuff. आप मुझे बताइए, आप अभी आपका मेरे साथ पॉडकास्ट होगा और आपका भी एक सभ्य सुशील लड़की जो कि अपने आप को पूरा कवर करके सारी कंट्रोवर्सी से दूर रहेगी, आपको उसके साथ पॉडकास्ट करने में मज़ा आने वाला है या मेरे साथ मज़ा आने वाला है? क्यों सर? आज के टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो दिमाग होता है वो मुझे ऐसा लगता है is going for creativity, it's going for something which is not so true. Everything which is clean, clear is boring. We want masala, right? तो हम बुरे नहीं है, हमारा दिमाग बुरा है. आपने उसको पॉलिश कैसे किया है? मैं पैदा हुई थी ये ब्रेन के साथ तो पैदा नहीं हुई थी, राइट? मैंने अपने दिमाग को, ये मेरे पे डिपेंड करता है मैंने अपने आप को कैसे पॉलिश किया है, ये मेरे पे डिपेंड करता है. आई डोंट फील लाइक दैट. नहीं, मेरी सराउंडिंग, मैंने अपने आप को किस पे सराउंड कर रखा है, मेरे थॉट प्रोसेस क्या है, मैं दिन रात किसे देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, मेरे लाइक मेरे रील्स में क्या आ रहा है, मैं किस तरह से चीज़ों से इफेक्ट हो रही हूँ. दैट्स हाउ डिसाइडिंग माई ब्रेन. सो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल ऑफ मी. सो हाउ कैन आई बी रॉन्ग?
The surrounding is wrong. I'm not saying that you are wrong. I'm saying the people are wrong. जैसे people, I'm taking about Yeah. like people. I'm a people right now, right? I'm a people right now. How I am wrong? My surrounding is wrong. I am getting attracted to it because जो भी गलत है वो बहुत attractive है. I am again telling you, whatever the wrong is attractive. साफ सुथरी चीजें लोगों को पसंद नहीं आती है. नहीं पसंद है सर, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. मैं अभी आपके साथ ऐसे पॉडकास्ट कर रही हूँ, किसी को याद नहीं रहेगा. अभी मैं हेलमेट पहन लूँ, महालक्ष्मी का ये लाइक यू नो यहाँ पे बांध लूँ, या अगर मैं कोई भी रिलीजन वाली चीज़ों को लगा लूँ, तो क्या होगा? वो चीज़ें क्या फायर अप Viral हो होंगे. जाएगी. You got my point. So anything which is real, people are not connected to it. People want to see which is unreal. एंड यहाँ पे those people who used to say that you are playing a victim card, जैसे women को कई बार ऐसे point out कर देते हैं about this victim card thing. I am so irritated with this word victim card. Sir, don't take me in another way. Don't take me in another way. जब मेल को पता चला, देखो पहले तो फीमेल को उतनी ज़्यादा पार थी नहीं. जब औरतों ने अपनी पार समझी कि यार ये मेरे हक हैं, ये मेरी पार्स है, सो फीमेल स्टार्टेड फीमेल ने अपने आप को स्टॉप करना शुरू किया. यार ये मेरी लिमिटेशंस नहीं है. आई हैव टू फ्लाई, आई हैव टू फ्लो. मुझे रुकना नहीं है. मेरे साथ गलत हुआ तो मैं अपनी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, मैं अपनी चीज़ें बताऊँगी. तो मेल या सो कॉल सोसाइटी ने क्या कहा, यार ये तो अपनी आवाज़ें उठा रही हैं, इनकी आवाज़ों को कैसे बंद किया जाए. चलो एक वर्ड स्टार्ट करते हैं, विक्टिम कार्ड. तो ये जो विक्टिम कार्ड आया, ये फिर से औरतों, जैसे औरतों ने अपनी जुबान बढ़ानी शुरू कर दी, यार अब इसकी जुबान कैसे काटी जाए, चलो एक वर्ड स्टार्ट कर देते हैं, विक्टिम कार्ड. सो जो भी इंसान के साथ कुछ भी बुरा हुआ है, अब आप उसको कैसे दिखा दे, यार इसका मुंह तो बंद कराना है मुझे, यार इसके सोसाइटी में तो फिर से इसकी नाक कटवानी है, चलो विक्टिम कार्ड वाला वर्ड आ गया. सो आई फील लाइक दैट विक्टिम कार्ड डोंट होल्ड एनी वैल्यू. विक्टिम कार्ड भी वर्ड बना हुआ है कि आप अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर सको. इन द एजुकेशन सोसाइटी, सेक्सुअल हरासमेंट एवरी टीचर मस्ट हैव फेस्ड, बट जुबान नहीं किसी की खोल दे. क्यों? सोसाइटी का डर, मुझे फ्यूचर में जॉब मिलेगी या नहीं, बच्चा मेरे घर वाले मेरे सपोर्ट करेंगे या नहीं, मैं FIR करने गई कल तो मेरे बारे में क्या दुनिया सोचेगी, कल मुझे जॉब नहीं मिलेगी, ये एजुकेशन वाले सोचेंगे ये मैम तो ऐसे ही, ये सर तो ऐसे ही हैं, यू नो. और फिर किसी लड़की ने बताया कि यार मेरे साथ ये हरासमेंट हुआ है, मेरे साथ ऑनलाइन हरासमेंट हुआ है, या मेरे साथ लाइक वर्क प्लेस में हरासमेंट हुआ है. Oh my God, she is playing victim card just because she is a female. Are you kidding me? Don't you have sensibility at all? मुझे एक बात बताइए, एक सिर्फ मेरा एक जवाब देना. आप एक वुमन को कैसे चुप करा सकते हो अगर उसने अपनी कैपेबिलिटी पिछा ले कि यार मेरी ज़ुबान है, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मैं अपनी ज़ुबान खोलना चाहती हूँ, मैं अगेंस्ट बात करना चाहती हूँ, आप उसको कैसे चुप कराओगे? मुंह तो पकड़ नहीं सकते. विक्टिम कार्ड. अरे विक्टिम कार्ड, ओह माय गॉड, प्रिया मैम यू अगेन प्लेइंग द विक्टिम कार्ड. शुरू हो जाता है विक्टिम कार्ड. सो विक्टिम कार्ड ये वर्ड आया, मुझे ऐसा लगता है विक्टिम कार्ड हैव नो वैल्यू, एंड आई विल नेवर प्ले विक्टिम कार्ड until unless you will not allow me. And when it comes to the whole definition of feminism, what sort of feminism you uphold in your life and you want to implement in your life? So feminism doesn't mean कि मुझे extra benefits चाहिए from the judiciaries or from anything. Feminism is like equality. आपने मेरे से शादी करी, ठीक है, मैं अगर बिना दहेज आपके घर आई हो तो एलिमनी में आपसे ना लूँ, ये मेरी इक्वालिटी है, ये मेरा फेमिनिज्म है. फेमिनिज्म मतलब ये नहीं कि बिना दहेज तक तो घर गए, ऊपर से फिर बाद में आप वेट करे हो डिवोर्स हो तो यार चाले पैसे इकट्ठे डिवाइड होने चाहिए, ये फिर फेमिनिज्म नहीं है. फेमिनिज्म इज लाइक इक्वालिटी. आई फील लाइक दैट. मेल के साथ मेल एजुकेटर, फीमेल, मैं अपनी तरफ से बताऊंगी जस्ट बिकॉज आई एम एजुकेटर, आई एम टेलिंग यू इन दैट वे. एक मेल एजुकेटर है, एक फीमेल एजुकेटर है. फीमेल एजुकेटर अपनी बॉडी पे काम कर रही है. ओ माय गॉड, स्टूडेंट्स विल गेट डिस्ट्रैक्टेड इफ अ मेल इज हॉट लाइक यू. If someone is a male as hot like you, he goes into the class, student will get distracted, but nobody will say you anything. Oh my God, sir is working on a body because he want to distract of me, like you know, females there in the class. Nobody will question you. हम थोड़ा सा फिट हो गए,
हम थोड़ा सा लिपस्टिक या थोड़ा सा शेडो लगा लिया, oh my god, this is what, do you want to distract the male students? You start questioning me. This is this equality? और अगर इसमें औरत अपना जुबान उठाती है तो फिर कहते हो oh my god, अब प्रिया का फेमिनिज्म जाग गया. क्यों नहीं जागेगा यार? Just because a God have not given you breast doesn't mean you are like साफ सुथरे हो. और just because God have given us breast doesn't mean हम वल्गर हो जाते हैं. Have you कभी ऐसा देखा? मेल वल्गर होता नहीं है, फीमेल वल्गर हो जाती है, फीमेल कैरेक्टरलेस हो जाती हैं. आपके पास कैरेक्टर नहीं होता, मतलब तभी तो आप कैरेक्टरलेस नहीं हो सकते. हमारे अंदर कैरेक्टर था तभी हम लेस हो गए. आप कैरेक्टर मोर होते जाते हैं, हम कैरेक्टर लेस होते जाते हैं, इसका मतलब तो ये हो गया. और फीमेल बिकम चीप. ओ माय गॉड, द टीचर इज चीप बिकॉज शी शोन हर क्लीवेज, like accidentally साड़ी से थोड़ा cleavage, just because we are questioning upon our cleavage, just because God have given a breast, body are created in that way that we have breast, so obviously we will have cleavage also. You don't have a breast, that you don't have a cleavage and you become so great and we become vulgar. Is this the equality? I don't find equality there. I feel like we are carrying a child. In future, we are going to carry the child. For that, God have given us mammary gland. That is called as breast in a typical language. Don't consider breast as a vulgarity. Right? In the human body, it's a part. Take it as a part. That's all. Breast should not be considered as a vulgarity as considered a woman. That woman is cheap, vulgar, just because something is being shown. That's it. I really appreciate what you're saying, but when you said about the hotness thing, for 30 seconds I got zoned out. I'm just telling you, suppose, I'm just telling you, if a person is like working on a body, doesn't mean that we are here to create attention. We love to be fit. Why I feel like that a woman is questioned, like student get distracted, you know, don't wear saris, don't wear, you know, something which is like giving the curve of your body. I feel like that, okay, just one thing, can you just see the statistics about the harassment? Male educator, believe me, I'm just not telling you, you can Google about anything. I have seen. We can, yeah. Like, yeah. So what I was telling you, that a male teacher have always been shown up, 70% male educator do harassment to the girl child. Like, if there is a student, girl student, she is feeling afraid or sexually harassed. They will used to call, beta काम हुआ कि नहीं हुआ, they will take the number, they will do the chit chat. But ऐसा फीमेल के बारे में आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि फीमेल एजुकेटर उस बच्चे के साथ ऐसा करते हुए पाई गई, या उस मेल बच्चे ने बताया कि मैम ने मुझे गलत इनअप्रोप्रिएट वे में टच किया हो. Have you seen, like, एक वुमन को ही हमेशा क्वेश्चन पूछोगे, यार why you wearing sari, students are getting distracted, but you will not question a male. कि सर आप अपना कैरेक्टर संभाल के रख रहे हो या नहीं, आर माई क्लास गर्ल्स इन द क्लास आर फीलिंग सेफ और नॉट. यू आर नॉट क्वेश्चनिंग द मेल, यू आर क्वेश्चनिंग द फीमेल कि मैम ऐसा मत पहन के जाओ, बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. तुम एक बार पूछो, स्टैटिस्टिक्स देखो, हाउ द गर्ल्स आर कनेक्टेड विद द मेल इन द क्लास. टीच मेल not to connect with a girl child, like, you know, girls in the school. If a student is girl, don't connect in that way. Don't take the number of that student. Don't personally call them. ये तुम लोगों का दिमाग ना जब लड़की फीमेल टीचर्स के ड्रेस से हटेगा, तो वो जो तुम्हारे बच्चों के साथ हरासमेंट हो रहा है क्लास में, जो लड़कियां और जो बच्चे आपको बोल भी नहीं पाते हैं. नाउ मेल एजुकेटर, आपको अपने बच्चों को फीमेल विद द ड्रेस और हॉट बॉडी से नहीं बचाना है, आपको उन टीचर से, मेल एजुकेटर से बचाना है जिनके वजह से आपकी बच्ची हरास हो रही है या डिसअट्रैक्ट हो रही है, उनको टेक्स्ट एंड ऑल कर रही हैं. मैं इस इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से हूँ. आई नो, मेरे सामने स्टाफ रूम में मेल बैठा हुआ है, वो एजुकेटर बैठा हुआ है, आई कांट नेम दिस गाय, फिजिक्स एजुकेटर ही वॉज.
ही वॉज टेक्सटिंग द गर्ल 12th स्टैंडर्ड की, वो लड़की थी, उसको टेक्स्ट कर रहा है. मैं उसका नाम देख के आई वॉज शॉक, लाइक आई मीन आर यू टेक्सटिंग टू अ स्टूडेंट? अरे प्रिया, यू डोंट नो, बच्चियाँ ऐसी होती है. बच्चियाँ नहीं है, लाइक दे आर ग्रोन अप. आई वॉज शॉक. डोंट प्ले दिस कार्ड विद मी कि लड़कियाँ मेरे को इन्वाइट करेंगे, ऐसा होता है. I hope he is listening to me and I'm telling you, सुधर जाओ. बिकॉज और यही वो लोग होते हैं जो बाद में बताते हैं, ओ माई गॉड वो टीचर का तो कैरेक्टर ही अच्छा नहीं है, वो मैम तो बस सूट पहन के आती है, बाकी तो फैंसी हैं काफ़ी ज़्यादा. एंड दे आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट. खुद ही कीड़ा करो, फिर बाद में खुद ही बदनाम कर दो. एंड डू यू फील कि ऑनलाइन कोचिंग में इसका थोड़ा सा कम रहता है या ऑफलाइन में ज़्यादा रहता है? कैसा रहता है ऑफलाइन और ऑनलाइन का, क्या हिसाब रहता है? सब बच्चे बच्चे होते हैं. मिसोजिनी मैं बताती हूँ, बच्चे बच्चे होते हैं. एक्चुअली मैं ये भी नहीं बोल रही बच्चे भोले होते हैं. बच्चे थोड़े से नेव होते हैं, थोड़े नेव. बाकी वो लोग क्या होना है, एडवांसमेंट में जा रहे होते हैं, क्योंकि तुम उनको एक्चुअली उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हो. वीडियोस दिखा के, ये दिखा के, वो दिखा के, यू नो कि एजुकेशन मतलब यहाँ से पढ़ोगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा. यू नो एडमिशन ले लिया यहाँ पे तो ऐसा. तो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा भाग रहा है रिजल्ट के लिए. और वो वहाँ पे क्या हो जा रहा है, टीचर सब उसको फन करने लग गए हैं क्लास में. ओ यू नो ये मैम आ गई, ये सर आ गए हैं, ये सर तो इतने रिजल्ट दे दिया, ये सर तो इतना रिजल्ट दे दिया. तो बच्चा क्या है कि बच्चे को पता चल गया है, ये सर मतलब रिजल्ट, ये मैम मतलब रिजल्ट, तो चलो पढ़ते हैं. लेकिन जो बच्चा आपके मॉम डैड के प्रेशर की वजह से आया कि यार तुमको डॉक्टर बनना है, तो वो बच्चा क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा. यार इनसे पढ़ूँ, उनसे पढ़ूँ, इनसे पढ़ूँ, उनसे पढ़ूँ. और फिर जो टीचर के साथ वो कनेक्शन बना लेता है, फिर वो उसका हो जाता है. इन द ऑफलाइन आई एम टेलिंग अबाउट, इन द ऑफलाइन आई एम टेलिंग अबाउट. सो मैंने ऐसा देखा है, जो बच्चे पढ़ने में है उनको कोई मतलब नहीं है आप कैसे टीचर हैं कैसे नहीं है, वो पढ़ते हैं. लेकिन ये जो एवरेज वाले बच्चे होते हैं और ये जो एकदम वीक स्टूडेंट होते हैं, वो अट्रैक्ट और डिसअट्रैक्ट होते रहते हैं हमेशा. और इनका फ़ायदा उठाते हैं ये कोचिंग वाले. जो बच्चा रिजल्ट देना है वो कहीं पे भी पढ़ता है, वो दे ही देता है. ये कोचिंग वाले प्रमोट करते हैं कि यू नो हमारे इतने ज़्यादा बच्चे, हम तो AIR रैंक लेके आए, ये लेके आए, वो लेके आए. मुझे आप एक बात बताओ, 1000 नहीं लाख बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं, 100 का रिजल्ट दे दिया तो कौन सा ऐसा तीर मार लिया आपने? 100 का रिजल्ट, लाख बच्चों में से अगर 100 बच्चे ने अगर रिजल्ट दे दिया तो कौन सी तीर मार लिया यार आपने? लेकिन अगर यही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफलाइन जहाँ पे 1000 बच्चा है, अगर उसने 100 बच्चे का रिजल्ट दे दिया तो बात बनती है ना. ऑनलाइन में लाख स्टूडेंट 100 रिजल्ट, और वहीं पे ऑफलाइन में 1000 बच्चा 100 रिजल्ट. हु इज मोर पावरफुल, हु इज मोर बेटर? एंड ऑनलाइन कोचिंग में आई वांट टू ऐड वन थिंग. आई फील कि इसमें कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा चलती है एंड किड्स आर, जो स्टूडेंट्स है, दे आर लिटरली एंजॉइंग दिस सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्सी एंड दे आर पेविंग हीट टू दिस कंट्रोवर्सी. लाइक किसी टीचर ने किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया, वो क्राइंग वाले थंबनेल डाल देते हैं एंड ऑल दैट स्टफ कि नाउ ही इज़ अटैक्ड, नाउ ही फील्स दिस, या ऐसा ऐसा चल रहा है. सो आई फील कि वो सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट को वो भी डिस्ट्रैक्ट करता है काफ़ी ज़्यादा, दिस कंट्रोवर्सी थिंग. सर connection, emotion, sir we are human at the end, student are also human. मेरा पॉइंट क्या है कि अगर जैसा कोई बच्चा है एक टीचर के साथ कनेक्ट हो जाता है, मैं भी अगर अपने बच्चे के जगह पर रखूँ यार, मैं भी अपने एक टीचर से कनेक्ट हो जाऊंगे, और वो टीचर जब छोड़ के जाएगा तो मेरे को दर्द होगा, वो बात ठीक है. लेकिन वो बच्चा ये क्यों भूल जाता है कि हम भी ह्यूमन है, हमारे साथ भी दोगलापन होता है. कुछ टीचर्स को सर पे चढ़ा दिया जाता है, कुछ टीचर्स को यहाँ पे रखा जाता है, जबकि उसकी पोटेंशियल इससे काफ़ी ज़्यादा है. मैं तो अपना पर्सनल आपको रिव्यू बताती हूँ. मैं अभी एक ऑनलाइन फर्म में गई थी, ओके, आई टेक द नेम, विवेक ओबरॉय, उसका CXO है, नॉट CXO है, या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज विवेक ओबरॉय. कंपनी इज समथिंग आई कांट नेम द, एजुकेशन रिलेटेड, या ही इज एडटेक में है. तो मेरा कहने का मतलब है इस टॉपिक में कि आजकल इतना फरेब है ऑनलाइन एजुकेशन में दैट इनके पास बच्चे भी नहीं है और इनके पास फंड भी नहीं है. सो पे भी दे आर जस्ट ड्रैगिंग देमसेल्फ. ओके, सो इन दैट वे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट नाउ. सो हाँ, मेरे को आपको ये बताना था, जैसे अभी ना एक एडटेक कंपनी है जो विवेक ओबेरॉय रन कर रहा है.
मैं उसमें उन्होंने मुझे बुलाया कि प्रिया मैम आप आ जाइए, आप एक यहाँ पे एक हमारा भी PVT लाइक प्राइवेट लिमिटेड होगा और आप अपना करना और आप 40% शेयर होल्डर हो जाना, हम 60%, आपको बस स्टूडेंट्स कन्वर्ट करने हैं, ये करना है वो करना है। सर ऑनलाइन में इतना फरेब है ना, इतना फरेब है कि मैं आपको क्या बताऊँ। वो कुछ कंपनी है एडटेक में जिनके पास कैमरा तक नहीं है, बताने के लिए बड़े बड़े नाम है इनके, कैमरा तक नहीं है इनके ऑफिस में। किसी भी लड़की के साथ वर्क प्लेस में हरासमेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इट डजंट मेक सेंस टू देम। आपको मैं इतना बताना चाहूँगी कि एडटेक की हालत एट प्रेजेंट बहुत वर्स्ट है। There is only one, I feel like that institute, that is physics वाला, which is growing well. उसको कोई फंड की प्रॉब्लम भी नहीं दिखती मुझे, ऐसा ना टीचर्स को वहाँ पे प्रॉब्लम है। एक्सेप्ट दैट कोई भी ऑनलाइन में कोई खुश नहीं लगता मुझे। जैसे मैंने भी बहुत जगह काम किया हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आई डिड नॉट फील एनी वे द सेटिस्फेक्शन। चाहे आप वो बायजूस देख लो, चाहे कोई भी देख लो, चाहे अभी तो मैं इतनी सारी जगह पे काम किया। आई स्वेयर रेवेन्यू प्रेशर, ये प्रेशर एक आई टेल यू द सीक्रेट ऑफ इट। 3 टीचर हैं, 3 टीचर ने 6 बैच बना रखी है, ठीक है, और वही 3 टीचर 6 बैच चला रहा है, मतलब 6 अलग अलग बैच, 3 टीचर। हाउ इट इज पॉसिबल? एक बैच पे कितने बच्चे हैं? एक बैच में कितने भी बच्चे हो सकते हैं, मतलब टीचर वही जैसे एक आज बैच स्टार्ट हुई है 1 अप्रैल को, तो वो बैच हो गए। अभी ये लोग फेच कर रहे हैं कि 17 अप्रैल को नए बच्चे आएंगे, तो वही जो बैच होगी उसका नाम बदल देंगे। एडमिशन अब हम लोग 17 से ले लेंगे, मतलब जितना एक हफ्ते पढ़ा दिया, 15 दिन पढ़ा दिया, वो आपको रिपीट नहीं मिलेगा। आपको वो अब जितना नया क्लास स्टार्ट हो रहा है, अब आपको वहां से ज्वाइन करना है। PW ऐसा नहीं करता। PW के पास 6 बैच है, तो 6 की 6 बैच में अलग अलग टीचर है। आप जब से ज्वाइन करोगे ना, तब से आपको वो एजुकेशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 टीचर है, 6 बैच बना दिए, जब पे भी बच्चे का मन करे एडमिशन लेते जा रहे हैं, अलग अलग बैच, मतलब 3 ही टीचर हैं, अलग अलग बैच में बनते जा रहे हैं। सो व्हाट इज द पॉइंट? बच्चे को वो पढ़ा रहे हो क्या तुम? एक ही समय पे 4 चैनलों पे आपका नाम जा रहा है। सो आप कह रहे जैसे PW है वो क्वालिटी पे फोकस करता है, ना कि क्वालिटी पे भी है, बच्चे को फ्री एजुकेशन तरह से भी है। कोई भी चीज 50,000 की थी, उसने 5,000 में लाके दे दिया आपको। एजुकेशन उसने हर घर पे प्रोवाइड किया है। पॉइंट नंबर 2, वो टीचर्स को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देता है। कोई रेवेन्यू का प्रेशर नहीं है सर। आई एम नॉट बीटिंग द बुश। अभी तक तो मैं अन अकेडमी का पार्ट थी, अब अन अकेडमी के साथ टाइप खत्म हो गया मेरा, अभी मैंने कहीं ज्वाइन नहीं किया है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ एज मतलब इट जस्ट नॉट लाइक आई एम प्रमोटिंग एनीबडी, बट आई फील लाइक दैट जो टीचर्स हैं, जो PW में हो गए या जो बच्चा है, दे आर लाइक अ फैन। PW इज इमोशन राइट नाउ, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम अ पार्ट ऑफ देम नाउ। And what do you feel about जैसे I term this whole ideology like since now if I am in college so I can relate to this, पर usually 11th 12th के बच्चों को ये समझ नहीं आता है, that is this selling dreams in terms of this JEE निकाल दो, NEET निकाल दो, देखो उसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी। like I have a friend who is in IIT Bombay and he's struggling right now. He was a star once, कि इस डिस्ट्रिक्ट से इसने IIT की रैंक निकाली है, वो IIT बॉम्बे में चला गया, बट नाउ ही इज स्ट्रगलिंग बिकॉज उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही नहीं था वैसा। What do you feel about selling I dreams? just love this question. I want to tell you that. See, right now, educators earn 5 lakh, 6 lakh, per month, 10 lakh a month. Yeah, I'm telling you. Which your doctor, like, I'm not just feeling hurting the sentiment of anybody. In my house also, there's one MBBS, and I am plain MSc. Okay, I'm earning more than 4-5 lakh a month. The plain MBBS person is earning not even more than 70,000, 80,000. So why this pressure on your child? Why that pressure on your child? Be doctor, be doctor, be doctor. Right now, a person who is doing one podcast is earning 10 lakh for the same day. A person who is like, Insta reel or falana thing, we are going to non-conventional way something, they are earning 5 or 6 lakhs for a one reel or so. So why parents are not understanding that right now? देखो parents को भी ये नहीं है कि डॉक्टर बन जाएगा तो समाज सेवा करेगा, उनके भी दिमाग में ये है कि डॉक्टर, इंजीनियर, LLB, मतलब हाई कोर्ट का वकील, पैसा।
एट द एंड उन्हें भी पैसे ही सोच रहे हैं। कुछ लोगों की ड्रीम होती है डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर के अलावा कुछ बनना ही नहीं है, वो मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, वो इमोशन है सर। लेकिन ये जो फैक्ट्री हम खोल रहे हैं ना, जैसे अभी तक वो जो पेरेंट्स हैं जो डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं, मैं और आप अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर के लिए फोर्स नहीं करेंगे, बेटा तो कुछ भी बन जाओ, बस तो जिंदा रहना, डिप्रेशन मत होना, डिप्रेस्ड मत होना, डिप्रेशन में मत जाना। मैं तो अपने बच्चों को यही बोलूँगी तो जिंदा रहे, क्योंकि ये जो समाज है थोड़ा सा बदल चुका है, तो कोप अप रह ले, तो जिंदा रह ले, बहुत बड़ी बात है। मैं उन्हें ये फोर्स तो हम आप मुझे बताइए कि जब हमारी वो जनरेशन खत्म हो जाएगी, जो हमारे पेरेंट्स एंड ऑल वाला सिचुएशन अब खत्म हो चुका है पूरा, तो आप अपने बच्चों को फोर्स करोगे इंजीनियर डॉक्टर के लिए? कोई नहीं कर रहा है सर। हमारे ही पेरेंट्स हैं जो अभी कर रहे हैं, बाकी कोई करेगा ही नहीं। तो जब तक वो पेरेंट्स है, जब तक इंडियन माइंड सेटअप है डॉक्टर इंजीनियर, तब तक हमारी दुकान चलेगी, नीट और जे के। हम अपना ड्रीम ही सेल कर रहे हैं। आप एक्चुअली हम बच्चों का ड्रीम नहीं सेल कर रहे, हम उनके पेरेंट्स का ड्रीम सेल कर रहे हैं। बट हमारी जनरेशन तो समझ जाएगी, जैसे जेन ज़ी जब पेरेंटिंग में आएगी, हाँ, तो तब आपको लग रहा है ऐसा बंद हो जाएगा जितना भी ये बिजनेस? मुझे ऐसा लगता है नियर बाय हाफ इट विल बी क्लोज। या ऑफ कोर्स देखो सर, पढ़ने वाला तो एक भी ऐसे भी बच्चे देखिए जो 4-5 साल से MBBS के मतलब नीट का पेपर निकालने के लिए मरे जा रहे हैं, वो बच्चों का जुनून होता है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है पेरेंट्स ने भी समझना चाहिए, आजकल के टाइम पे पेरेंट्स भी थोड़े टॉक्सिक हो जाते हैं। I'll be like very harsh if I'll use the word toxic, but बच्चे को समझ ही नहीं पा रहे हैं। कंपैरिजन मेरे चाचा का लड़का, मतलब आप सपोज करो मेरे पापा है, यार मेरे भाई का लड़का इतना इंटेलिजेंट, तू गधे क्या कर रहा है, शॉप खुलवा के बैठा दूंगा। ये कंपटीशन मेरे भाई में नहीं होगा, लेकिन मेरे पापा और उसके भाई में है। उसके कारण हम लोग ये मतलब लेके चल रहे हैं, यार पापा को बुरा लग जाएगा, पढ़ लेते हैं, ऐसा थॉट बच्चा लेके जा रहा है। आई एम तो वेरी गॉड ग्रेस कि माई डैड वॉज लाइक सो ओपन, जो करना है करो, जिंदा रहो। डैड हैव ऑलवेज सेड मी दैट। सो मैं ये सोचती हूँ कि वो मेरे तो कज़न है, मैं तो देख रही हूँ उनकी थॉट प्रोसेस क्या, उनके नहीं बच्चे आते हैं गले लग के रोने लग जाते हैं, मैम मेरी कल पापा से लड़ाई हुई, मेरे मम्मा से लड़ाई हुई, वो समझ ही नहीं रहे मेरा दर्द, वो हमेशा बस रिजल्ट करते रहते हैं। एक के तो पापा थे बेल्ट मारा था सर, अगले दिन आया था उसके पूरा इस टाइम की बात कर रहे हो? ये इस टाइम की बात है सर, लाइक बेल्ट मारा था। एंड आई वाज लाइक कि क्या हुआ, आके वो लड़की चिपक गई मेरे को। मैंने कहा मेरे भाई को कल मैं मारते देखा, नहीं लड़की को नहीं मारा था, उसके भाई के लिए वो रो रहे थे। मैंने कहा आपका भाई, तो कहते हैं कि मेरा भाई 12th में है, 12th C में है, और मैम मैं ह्यूमैनिटी लिया है मैंने, आर्ट्स में, बट मैम आप प्लीज़ उसको हेल्प करो। मैंने कहा क्यों? पापा ने उसको कल बहुत मारा। मैंने कहा क्यों? फिजिक्स में मैम बहुत कम मार्क्स आते हैं, उसको हम इतना पैसा खर्चा करें बट उसका पेपर नहीं हो रहा, मतलब उसका क्लियर नहीं हो रहा, उसके बहुत कम मार्क्स आते हैं। वो लड़की चिपक कर रोने लगी, मतलब वो अपने भाई का पेन नहीं देख पा रही है। मैं ये नहीं कह रही कि पापा पत्थर है या मम्मी पत्थर है, लेकिन आप अपने बच्चे को मार कूट के कैसे पढ़ा सकते हो सर? जब तक उस बच्चे के दिमाग में जुनून नहीं आएगा, बच्चा पेपर नहीं क्लियर करेगा। आपकी वजह से मैं कैसे क्लियर कर लूंगी पेपर? मुझे तो समझ में आना चाहिए ना भाई वो थ्योरी। अब देखो यहाँ पे भी, अगर अभी मैं 50,000 खर्चा कर रही हूँ कोई चीज़ के लिए, मैंने ये रिंग के लिए 5,000 रुपये खर्चा किया, कल गायब हो जाएगी, दर्द होगा। लेकिन ऐसी चीज़ के लिए मैंने 5 करोड़ खर्चा किया होता, मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा ली होती, मेरे को रिग्रेट होगा ना। तो बच्चे के ऊपर 50,000 नहीं 5 लाख तो तुम खर्चा कर रहे हो, बच्चा रिजल्ट नहीं देगा तो फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन वही कोर्स अगर 5,000 का मिल जाए तो पेरेंट्स का अरे यार 5,000 ही तो गया, क्यों अपने बच्चे को मैं खाऊं। यहाँ पे PW plays the better role. PW. Yeah, again I'm telling you, I feel like I'm parent. मैं पेरेंट की जगह सोचूंगे। मेरे पापा यही बोल रहे हैं, कह रहे यार 5,000 में जो कोई चीज कोर्स है, 5,000 जाने का मुझे दर्द क्यों होगा? बट पेरेंट्स को फिर एक चीज ये भी तो आ सकती है कि सिंस प्राइस कम है तो क्वालिटी नहीं होगी। यही तो प्रॉब्लम है। मैं कोई कपड़ा, ये पैंट मैंने ली ज़ारा से, मान ही लीजिए, ठीक है, ये पैंट है, द सेम थिंग अगर मुझे सरोजनी नगर से मिल जाता है और मुझे वही क्वालिटी में मैंने कहा थोड़ी बहुत इधर उधर हो गई, वही लुक है, वही चीज़ है, उतनी ही ड्यूरेबिलिटी है, तो क्या बुरा है सर? बट कपड़े और करियर एक चीज़ नहीं है सर। अब आप सोचो, हम भी MSc BSc हो, राइट? अन अकेडमी में भी टीचर MSc BSc करके ही आए, कोई तो डॉक्टर्स आता नहीं है। अगर नीट में कोई टीचर पढ़ा रहा है, आप मुझे यही तो प्रॉब्लम है सर, कि नीट में अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो डजंट मीन दे आर डॉक्टर। ऐसा तो फिर एक काम करो, डॉक्टर MBBS वाले सारे अपना बुढ़िया बिस्तर बंद कर दे, एजुकेशन में आ जाता है।
MSc BSc वाले से ही पढ़ रहे हो ना सर. सारे एजुकेशन में तो सारे डॉक्टर पढ़ाने नहीं आ सकते. पढ़ा कौन रहा है? नॉन डॉक्टर. हम तो नॉन डॉक्टर हैं. ऐसा तो फिर हम आपको करियर ही नहीं बना सकते. आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर कोई पर्सन आपसे कम पैसे ले रहा है तो वो आपको कम क्वालिटी देगा? नो. अन अकेडमी का टीचर उठ के PW में जाएगा, PW का LN में जाएगा, श्री चैतन्य का LN में आएगा, बाईजूस का LN में जाएगा. एजुकेटर सेम है बॉस. एजुकेटर सेम है. एजुकेटर कोई डॉक्टर नहीं पैदा कि भैया मेरा कोर्स 50,000 का है तो मैं 50,000 का टीचर ले मतलब 5 करोड़ का टीचर लेके आऊंगा. और क्योंकि PW दे रही है 5,000 में कोर्स तो मैं 5 पैसे का टीचर लेके आऊंगा. मुझे ऐसा लगता है सर, अभी तक जिस भी इंस्टीट्यूट में मैंने सबसे ज्यादा काम किया, सबसे ज्यादा मुझे मेहनत आकाश इंस्टीट्यूट के लिए करनी पड़ गई थी. जो ऑफलाइन था? नहीं सर, ऑफलाइन पहले था. ऑनलाइन तो पेंडेमिक के बाद बहुत सारी चीजें आई. आपकी अन अकेडमी और बाईजूस या कोई भी एजुकेशन ऑनलाइन एडटेक जो स्टार्ट हुई है सर, वो पेंडेमिक के बाद हुई है. तो ये जो PW नाम आया, ये जो अन अकेडमी, ये सारी चीजें एकदम भयंकर तरीके से उठी जब पेंडेमिक आया. तो ऑनलाइन का क्रेज था ही नहीं पहले, ये पेंडेमिक के बाद आया. तो मेरा कहने का मतलब है, आप ऐसा मत सोचिए कि अगर कोई चीज़ कम पैसे में बिक रही है तो वो उसकी क्वालिटी कम है. एजुकेटर सब सेम है, सबकी उतनी ही क्वालिफिकेशन है. हाँ, एजुकेशन में नहीं है. आपको डॉक्टर अगर कोई 50 लाख का 1 लाख का कोर्स ले रहे हो तो कोई डॉक्टर नहीं पढ़ाने आ रहा है बॉस. हम ही टीचर है जो सर्कुलेट कर रहे हैं. यहाँ रिजाइन देंगे, यहाँ फुदक के भागेंगे, यहाँ वहाँ पे. सो प्लीज ये दिमाग से निकाल देना कि ज्यादा पैसा ज्यादा करियर. मैं आज प्रिया पांडे बैक बेंचर होके यूनिवर्सिटी में टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट बनी. ठीक है, कौन सा मैंने MBBS नहीं किया, पढ़ा रही है ना MBBS के बच्चों को. क्यों? मेहनत तो मैं भी कर रही हूँ ना. मेहनत मैं कर रही हूँ. मेरे को पता है कि ये क्वेश्चन आएगा, ये करना है. हाँ, मैं MBBS के बच्चों को तो नहीं पढ़ा सकती, लेकिन आपके सपने तो जितने मुझे आते हैं, मैं जितना मैं मेहनत कर सकती हूँ उतना तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ. सो मैं उतनी पढ़ी लिखी हूँ कि मैं जाके कल आपको सर्जरी पढ़ा दूँ? नहीं. बट आपसे पैसे तो मैं ले रही हूँ ना. सो पॉइंट इज दैट कि जरूरी नहीं है. मैं कल बैक बेंचर थी, आज मेरी इनकम इतनी है कि मैं अपने क्लास के टॉपर की 5 गुना कमा रही हूँ. आपने एक वर्डिंग बोला था कि मेरे पहले जो आपके क्लास में या जो भी थे, वो जो बहुत टॉपर थे, आज वो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? स्ट्रगल. आप क्या कर रहे हैं? यू हैड मेड योर करियर, यू हैड मेड, आज आपको बहुत सारे लोग नो आप मेरी का गाली जी से बात कर रहे हैं, आप कर्नल, आप इतने ग्रेट पीपल से बातें कर रहे हैं. यू चूजन योर ड्रीम एंड यू हैव बीन अप. कल आप कहाँ जा रहे हैं, कल कहाँ नहीं जा रहे हैं, कल आपके अकाउंट में 7 डिजिट आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं हमें नहीं पता है, लेकिन यू डूइंग ग्रेट. सो द सेम थिंग, अगर मैं अपने आप को अपने क्लास के टॉपर से कंपेयर करती हूँ, वेयर दे आर, फोन करती हूँ, वही बात होता है. ओ माय गॉड प्रिया, जिंदगी तो चल ही रही है. मैंने कहा यार सही है, थैंक गॉड मैं भाग रही हूँ रफ्तार से, राजधानी के स्पीड से. सो बीइंग अ टॉपर डजंट मीन यू विल टॉप इन योर लाइफ ऑल्सो. वो जुनून होना चाहिए सर. बट फिर भी इंडस्ट्री वाले टॉपर्स बनाने में ही लगे, कोचिंग इंडस्ट्री वाले. सर टॉपर, मैं कह रही हूँ, टॉपर डजंट मीन यू आर सक्सेसफुल इन लाइफ. स्टूडेंट्स, टॉपर डजंट मीन यू आर सक्सेसफुल इन लाइफ. आई वॉज नॉट अ टॉपर, आई वर्कड हार्ड, आई केप्ट माई सेल्फ. इनफैक्ट मेरे दिमाग में डिजिट घूमती है, मेरे दिमाग में क्वालिटी घूमती है, मेरे दिमाग में पैसा घूमता है, तो मैं जाके यहाँ पे बैठी हूँ. ये बीच में प्रिया मैम आ रही है, उनको लग रहा है ऑनलाइन क्लास चल रही है. नो, आई एम जस्ट टेलिंग देम कि डजंट मीन कि आप टॉपर हो तभी आप वो डिजिट या आपके पेरेंट्स का सपना पूरा कर सकते हो. आई वॉज नॉट. मेरे घर पे MBBS भी है, मेरे घर पे डॉक्टर्स भी हैं, मेरे घर में IAS भी हैं, मेरे घर में पायलट भी है. बट हु चेज देयर ड्रीम, उन जिनके दिमाग में जुनून है, वो कहीं से भी पैसा कमाते हैं. एंड आई गेस आई एम अर्निंग. लेक्चर ओवर. क्वाइट वेल. इफ अर्निंग इज an important thing, then my education is not that great. जितना मेरी एजुकेशन उसके हिसाब से, तो फिर मेरी इनकम 1000 गुना है. That I'll say. So topper doesn't mean that you are going to achieve your dream salary or dream amount or dream house. For that आपको तपना पड़ता है, आपको पीछे भागना पड़ता है सर. एंड what are your views on this mental health issues when it comes to students? जैसे आप ऐसे competitive एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें obviously सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा कम है. करेक्ट. तो you must be encountering students like these जिनका बिल्कुल मोरल डाउन हो रहा है, अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स चल रहे हैं, या फिर peer pressure ही इतना आ रहा है, एंजाइटी इतनी आ रही है. So what's your view on this mental health situation of students? So
frankly speaking, I loved South India a lot in that way. South India, मैं 3 साल रही हूँ. मैंने एक ही चीज़ अबाउट साउथ इंडिया चीज़ देखा है, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में ऐसा कनेक्शन है, मतलब पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच में ऐसा कनेक्शन है. दे आर सो सपोर्टिव. लाइक आई स्वेयर, जो अपब्रिंगिंग साउथ इंडियन स्टूडेंट्स की होती है, वो अपब्रिंगिंग मैंने अपनी पूरी हिस्ट्री में कहीं नहीं देखी. मैं साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह गई हूँ. एक ही चीज़ मुझे कनेक्शन फील हुआ है, जो पेरेंट्स और साउथ इंडियन स्टूडेंट के बीच में जो है इज़ अमेजिंग. और उसके वजह से मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं. और उनका मेंटल हेल्थ, मुझे कभी कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला जो आके मुझे गले लग कर रो रहा है, थका हुआ है या मुझसे शिकायत कर रहा है. लेकिन ये चीज़ें मैंने ईस्ट में देखी, वेस्ट में देखी, नॉर्थ में देखी है. सबसे ज़्यादा प्रेशर नॉर्थ इंडियन को है, नॉर्थ इंडियन बच्चे को है. चाहे आप कट ऑफ मान लीजिए या कंपटीशन देख लीजिए, ऐसा मैंने साउथ में महसूस नहीं किया है. सो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स बहुत कोऑपरेटिव हैं. बच्चे में प्रेशर, बच्चे में पियर दुनिया की वजह से नहीं आता, घर से शुरू होता है. घर पे पेरेंट्स ने उनको समझना चाहिए, उनके साथ बैठ के बातें करनी चाहिए कि यार क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों ये कम आ रहा है, कहाँ पे, और कम मार्क्स भी आते हैं तो टूट नहीं पड़ना है कि यार ये कैसे हो गया, इतने पैसे खर्चा किया, ये किया. उनको बार बार मत बताओ कि पैसा खर्चा किया तो तुझे करना ही पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, तभी जाके पंखे पे लटक जाते हैं बच्चे. सर अपनी लाइफ में सिर्फ मैंने एक ही बार एनकाउंटर किया कि बच्चे ने किसी ने सुसाइड किया. जनरली ऐसा नहीं होता है. और वो पे भी जब मैं नॉर्थ में थी, मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि किसी ने नस काट लिया है, कोई कूद गया है, किसी ने उड़ी मार लिया है, या कोई पंखे पे लटक गया है, या किसी ने कुछ किया है. ऐसा इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि फैमिली जब तक पीछे खड़ी है ना बैकअप पे. मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ. मेरे पापा ने एक ही चीज़ बोला, बेटा तू कुछ भी करके आ जाओ, तू कल किसी का मर्डर भी करके आ जाएगी ना, मैं तेरे पीछे खड़ा हुआ हूँ. तो वो सपोर्ट के साथ ना आप लड़ सकते हो. बच्चा डिप्रेस समाज की वजह से नहीं होता, बच्चा डिप्रेस अपने घर की वजह से होता है. सो मैं बच्चों को नहीं बोलूँगी, उनके पेरेंट्स से ही बात करूँगी कि एटलीस्ट आप उन्हें समझिए, प्रेशर डालिए, लेकिन इतना नहीं कि बच्चा डिप्रेशन में चला जाए. एंड फैमिली सपोर्ट इज एवरीथिंग. आप दुनिया से लड़ लोगे लेकिन घर वालों से लड़ नहीं सकते. तो आई फील लाइक दैट वो फियर हटाना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, बच्चों की नहीं. और बच्चे, पेरेंट्स भी कभी कभी टॉक्सिक हो जाते हैं, तो एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है. अगर पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ बैठ के देख रहे होगे तो ये मैं उनको भी यही बताना चाहूँगी, कभी कभी उनकी जो बातें आपको दिल में लग रही है, एक जगह से सुनिए, एक जगह से निकालिए, फोकस कीजिए, कभी भी कुछ नहीं होगा. कोई भी चीज़ पे जब हम कुछ चीज़ें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो हम रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, तो उनकी भी कमी नहीं है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एनी हाउ आपको कुछ चीज़ें हमेशा दिल पे नहीं लेने कि पापा ने ये कहा, मम्मा ने ये कहा, तो मैं अभी जाके डिप्रेशन में चले जाऊँ. नहीं, वो गुस्से में, रेग में कहते हैं, बाद में एट द एंड दे विल कम बैक टू नॉर्मल. आई होप क्लास इज ओवर. तो इसमें मेरे को लगता है एक ये चीज़ भी है कि डू यू फील कि आज की जनरेशन थोड़ा सॉफ्ट भी है व्हेन इट कम्स टू दीज इश्यूज? नो, नॉट एट ऑल. बिल्कुल सॉफ्ट. मैं ये बोलूँगी सेंसिटिविटी के बारे में कि वी आर नॉट सेंसिटिव, वी आर, उसको एक बहुत थिन लाइन है, कंपटीटिव. वी आर नॉट सेंसिटिव सर, वी आर कंपटीटिव. और कंपटीशन के कारण जब फेलियर आता है ना, तो वो फेलियर बर्दाश्त नहीं कर पाते, और वो बर्दाश्त नहीं कर पाते तो स्टुपिडिटी करते हैं. और स्टुपिडिटी का रिएक्शन होता है जो हम देखते हैं यंग स्टूडेंट्स में, डिप्रेशन. वी आर नॉट सेंसिटिव, वी आर ओवर कंपिटिटिव. फॉर मी, आई डू नॉट नो, माइट बी रॉन्ग, बट वी आर नॉट सेंसिटिव, वी आर सुपर कंपिटिटिव. लाइक वी आर अ लॉट. मुझे लगता है ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, जो इसको बोलते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जो आपका, ये सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है. पहले भी था, बट हमें शायद पता नहीं था क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था. आज बच्चा अगर डिप्रेशन में जाता है, सुसाइड करता है, कमिट करता है, तो हमें चीज़ें पता चल जाती है. शायद वो उतना पहले भी था, लेकिन सोशल मीडिया की वजह आज ज़्यादा फैल चुका है, तो हमें ज़्यादा उसका रेट पता है कि यार हर घर में एक बच्चा डिप्रेस है. तो ये शायद पहले भी था, बट हमें पता नहीं था. तो आई एम नॉट सो कन्विंस्ड अबाउट दिस फैक्ट कि आज डिप्रेशन ज़्यादा हो गया. नहीं, आज कंपटीशन ज़्यादा हो गया, बिकॉज रिजल्ट्स काफ़ी पब्लिक हो चुके हैं. हर घर पे बैठ के हमें पता चल जाता है कि ये रिजल्ट आया है, वो पास हुआ है, वो फेल हुआ है. पहले ये होता था फ़ोन करके पता चलता था, आज तो बच्चे अपलोड कर देते हैं
मीडिया में मेरे इतने नंबर आया, मैं ये कर लिया, मेरी ये अचीवमेंट है, वो तो वो अचीवमेंट देख देख के हम पागल हो रहे हैं. एंड प्लस कोचिंग वाले भी स्टार बना देते हैं. कोई आपका AIR अगर आएगा सिंगल डिजिट, स्पेशली अगर आपके कोचिंग से निकल रहा है, हाँ, तो उसे वो भी स्टार स्टार सिर्फ एक ही दिन का रहता है, बाद में उनको पूछते भी नहीं है. ये जिस दिन रिजल्ट आना होता है उस दिन तो बच्चा कैमरा खोल के बैठे गए ना, कौन सा टीचर मुझे रिजल्ट दिखा रहा है, कौन सा टीचर नाम ले रहा है, उसके बाद आप वो जगह चीज भूल जाते हो. सो ये सब एक मार्केटिंग एंड मीडिया का बात है. बच्चों ने ये समझना चाहिए वो उसी दिन का हीरो है जिस दिन रिजल्ट है, उसके बाद तो हम उसे नहीं पूछते हैं, हम तो उसका नाम भी भूल जाते हैं. हमें बार बार वो नाम रटना पड़ता है कि यार इस टीचर का नाम, इस बच्चे का नाम क्या है, वो टीचर रटता रहता है नाम. सो ये मैं समझ लो कि वो हीरो है. वो हीरो सिर्फ उसी दिन के लिए जितना उनको एडवर्टाइजमेंट में पैसा मिल जाए, जितना उनका नाम फैल जाए. पर इस बच्चे की मेंटल हेल्थ बहुत जोर से खराब होगी, क्योंकि ये जैसे IIT या एम्स में जाएगा तो इसको अपने जैसे 100 मिलेंगे. करेक्ट. तो ये तो उधर डिस्ट्रॉय हो जाएगा ऐसे भी, क्योंकि इसको तो ऐसे ही इतना ज्यादा ऊपर चढ़ा दिया. यस, यही मैं आपको बोलने वाली हूँ. वो बच्चे बहुत खुश नसीब हैं जो कैमरे के आगे नहीं आए हैं और जिनका ढिंढोरा नहीं पीटा गया है. आप AIR रैंक 4, 3, 7, 8 आए हैं, सो यू डोंट हैव अ प्रेशर. बिलीव मी, एक बार इज्जत मिल जाती है तो बड़ा खौफ होता है उसे गंवाने का. आज मैं इधर बेखौफ होके बोल रही हूँ क्योंकि मेरी एक बार मीडिया में इज्जत निकाल चुके हैं ये लोग. सो अब एक बार आप बदनाम हो जाते हो तो कोई नाम का टेंशन ही नहीं है. यू गॉट मी पॉइंट. एक बार आपको उन्हें बदनाम कर दिया, आपको एक बार ये बता के कह दिया है, ओ माय गॉड शी इज दिस, शी इज दैट. अब वो जब वो खौफ की हद पे जब आप खड़े होते हो ना, तो आपको खौफ लगता ही नहीं है. आप हो जाते हो लाइक एक्सट्रीम. क्या हो रहा है, ये दुनियादारी क्या है, एवरीवन इज बीइंग जज्ड, मोदी इज बीइंग जज्ड, लाइक दुनिया जज हो रही है, हमें जज कर लिया तो क्या हो गया. सो स्टूडेंट्स यू आर वेरी हैप्पी कि तुम कैमरे में नहीं आए हो, वो लाइमलाइट में नहीं आए, तुम पे कोई प्रेशर ही नहीं है. प्रेशर किस पे होगा, जिसको एक दिन का हीरो बना दिया जाएगा. That's all. And also since you are talking about this media thing, ऐसे like जैसे आपने भी बताया कि एक इमेज सेट हो गई, आपकी भी सेट हो गई, मेरी भी सेट हो गई होगी, सबकी हो जाती है. So after like becoming that, according to people, that sensation, how have been your relationships and your personal life? Like were they affected? How was the reaction and how was everything? नाम होता है, बदनाम हो, खुश हो, मतलब कैसा भी हो, नाम होता है, मुझे ऐसा लगता है. एंड हाँ, मेरी फैमिली को पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि वाई दे आर ट्रीटिंग देयर डॉटर लाइक दैट. दो आई वॉज इन टू वेरी नॉबल प्रोफेशन दैट आई एम प्रिया पांडे, आई एम टीचिंग मेडिकल स्टूडेंट्स एंड दिस एंड दैट. तो फिर उसके बाद ना उन्हें बहुत सारी टीचर्स के ऐसे दिखे मीम. देयर आर सो मेनी टीचर्स जो कि ट्रोल होती हैं. मेरी फैमिली के दिमाग में हो गया, ओ माई गॉड माई चाइल्ड इज ओनली नॉट देयर. ऐसे तो बेचारी बहुत सारे बच्चों के साथ हो रहा है. एंड दे वर लाइक ये तो दुनिया का दस्तूर ही है. कैसे? क्योंकि जब आप मीडिया में जाते हो, यू बिकम अ पब्लिक फिगर, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड कि दुनिया तुम्हें प्यार करे. मोदी जी को माइट भी आप नहीं पसंद करते हो, मैं पसंद करती हूँ, माइट भी ये पसंद नहीं करते हो, मैं पसंद करूँ. सो देयर आर सो मेनी ओपिनियन. अब जरूरी तो नहीं है कि राहुल गांधी को सभी पसंद करें, राइट? तो कुछ उनको क्रिटिसाइज करने वाले भी, कुछ उनको प्रेज करने वाले भी होंगे. सो द सेम वे प्रिया पांडे आल्सो केम टू द ऑनलाइन. उसको ट्रोलर्स भी मिलेंगे, उसको प्रेज करने वाले भी मिलेंगे. क्लियर? सो द पॉइंट इज, अगर आप मीडिया में आते हो, आप मीडिया पर्सन होते हो, तो आपको दोनों के लिए फिट रहना पड़ेगा. अब करण जौहर नोज हिज स्टेटस, ठीक है? अब वो मेरे बोलने से करण जौहर तू तो ऐसा है वैसा है, मैं उसको बताऊं कि यू आर नॉट दिस एंड दैट, उसको क्या फर्क है यार? वो मेरी तरह मुझे जानता भी है क्या, वो इज प्रिया पांडे, मैं उसके बारे में कुछ भी बोलूं, पीपल यूज टू क्रिटिसाइज हिम, यू नो फॉर व्हाट रीजन. बट अगर आप फेमस होना चाहते हो तो आपको बेशरम बनना पड़ेगा. यू हैव टू बी बेशरम इन द सेंस लाइक आपको शर्म से, वर्ड से कोई नाता नहीं करना है. मेरे अंदर जब तक शर्म है ना सर, तब तक मैं डरती हूँ. एक बार शर्म गया, you become famous, and once you become famous, you become fearless. Once you become fearless, then you start living your life. And I feel like that. जब आपको बड़ा इंसान बनना है ना सर, आपको फर्क पड़ना बंद हो जाना चाहिए. You should not listen anybody. Be shameless. No, not shameless. Careless. Careless about what people are talking about you.
You have to be carefree actually. But what about the people who are in your life, who are important people, and then they start saying, Oh my god. Okay, so first of all, they don't belong to you. If they are not with your hard time, fuck them. Like, bro, in my good time, if you are there, it's fine. In my hard time, if you're going to criticize me like world, bro, you are like out of my box. You तुम उसी इकट्ठे में. I say like अगर blood के खून के भी रिश्ते तुम्हें परेशान कर रहे हैं, cut it off. even parents? यार इसमें मैं काफ़ी लकी रही हूँ बिकॉज अगर शायद मेरे पेरेंट्स नहीं होते तो शायद मैं भी डिप्रेस हो जाती थी. यार माई डैड इज़ लाइक डार्लिंग पर्सन. मेरे डैड का एक ही क्वेश्चन था, जब तक तू औरतों जैसे, मतलब औरतों जैसे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, बट एक औरत का एक इमेज बना रखा है, भोली प्यारी सहमी, यू नो, जो आप कहे हाँ मान लेना, ये वाली बनना नहीं. ये नहीं चाहिए मुझे प्रिया पांडे. मुझे चाहिए डू दैट, लिव योर ड्रीम. तुझे अगर जॉब करने के लिए कहीं भी जाना है, तो दुबई भी जाना चाहती है, गो बाई योर. मैं कहीं पे भी 6-7 महीने से ज़्यादा काम नहीं करना प्रेफर करती. मुझे ऐसा लगता है मुझे ये भी जानना है, मुझे इस इंस्टीट्यूट के भी मान जानना है, मुझे नॉर्थ वाले बच्चे भी पढ़ाने हैं, मुझे ईस्ट वाले बच्चे भी पढ़ाने हैं, मुझे साउथ वाले, मुझे जम्मू कश्मीर के बच्चे पढ़ाने हैं, मुझे दुनिया जहान घूमनी है. माई डैड वॉज ऑलवेज लाइक वेयर सो एवर यू आर, गिव मी योर एड्रेस, कॉल मी एंड यू मूव. बिकॉज ऑफ माई डैड आई वॉज लाइक दिस. आई होप सो. सो मुझे ऐसा लगता है किसी भी घर पे अगर पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं मज़ा आ जाता है, और पेरेंट्स भी सपोर्टिव नहीं है तो एक और चीज़ मैं बोलूँगी, मैंने ऐसे बहुत से फ्रेंड्स भी देखे हैं जो अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते. दे आर एक्चुअली वेरी खुश दैन द मतलब ये मेरे फ्रेंड्स जो अपने माम की घिचपिच रोज सुनते रहते हैं. सो अगर तुम्हें ऐसा लगता है यू नो कि रोज मच किचकिच कर रहे हैं, तो यार लेट्स बी सेपरेट. पेरेंट्स के एक थॉट प्रोसेस है, वो पेरेंट्स लेके चलेंगे, और तुम्हारी एक थॉट प्रोसेस तुम लेके चलोगे. सो डजेंट मैटर कि तुम्हें पेरेंट्स के साथ बाउंड रहना ही है. आप छोड़ सकते हो यार, दे आर फ्री फॉर देयर लाइफ थॉट प्रोसेस. तो आप भी फ्री हैं. अगर वो फ्री हैं तो आप भी फ्री हो. कमा तो सकते हो, खा तो सकते हो, अपना जहान तो बना सकते हो. I do understand that you're saying parents supportive होने चाहिए, and even your parents were supportive, but still the question remains same. In the case if your parents are not supportive, then what Leave the them. student should do? Leave them. And if you are dependent on them? Then you don't have an option. Live every day while you're dying too. क्यों डिपेंडेंट रहना है यार? लाइक उन्हें आपको कसम खाया गया कि आपको वो घसीटते ही रहेंगे. अगर तुम्हारे अंदर खुद कमा के खाने की पावर नहीं है तो तुम्हें फिर उनके साथ ही एडजस्ट करना पड़ेगा. क्या करें? पेरेंट्स तो देखो यार, एक सिचुएशन होता है कि एक समय पे आप चेंज हो सकते हो. एक इंसान जो 45-50 ईयर से वही थॉट प्रोसेस से लगा है, वो वही थॉट प्रोसेस से रहेगा. वो प्रोग्रामिंग चेंज नहीं कर सकते हो. दे आर नॉट लैपटॉप कि एक हार्ड डिस्क डाला, ये चेंज किया तो प्रोग्रामिंग चेंज हो गई है. जो इंसान 47 ईयर से चेंज नहीं हुआ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो तुम 45 मिनट में चेंज कर दोगे? तो तुम्हें वहाँ से निकलना पड़ेगा. एक स्क्वायर को तुम ट्रायंगल में कैसे फिट कर सकते हो? मेरे पास अगर कोई चीज़ एक ट्रायंगल में है तो स्क्वायर फिट हो सकता है क्या वहाँ पे? नहीं हो सकता. या इतनी अकल नहीं है तो फिर गुजर रहो उसमें. मुझे ऐसा लगता है कि फिर तो आप थॉट ही क्यों सोच रहे हो? जब अपने अंदर ही कुछ नहीं है तो आप घर से बाहर ही क्यों निकलना चाहते हो? बी देयर, जैसा कह रहे हैं करते रहो. And moving towards the end of this conversation finally, if you know there could be anything, ये मेरे लिए challenging था actually to decide what to ask to you. If there could be anything, like there are two pieces of advices I would like to get from you for a boy and a girl. For the boy who are continuously अच्छे लड़के भी एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ऐसे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, बट गुड बॉयज ऑल्सो डू एग्जिस्ट and they are continuously rolling again in that pit which is filled with what you can say no hope or negativity and all that. And for the girls who want to be bold, who want to be in the front, who want to lead but they cannot because again the society or might be any personal issue, what would be your piece of advices for these two individuals? I did not get your point. Like you wanted to say that there are good guys. So what you want to like? I did not. No. Good guys who are facing issues, who are facing struggle, who are facing negativity again and again in their life.
Regarding what? Society? Regarding society, regarding anything, regarding relationships, regarding even this competitive exam that they are having. Okay. Everything. So in that way, first of all, I feel like that मैंने तो अपनी लाइफ में लड़के जनरली बुरे नहीं देखे. मेरी लाइफ में तो जितनी भी आएंगे सारे कमोलिका ही आएंगे. So I have not faced even like believe me, टॉक्सिक मैन तो मेरी लाइफ में नहीं आए हैं. पता नहीं आते हैं तो वो स्वीट हो जाते हैं या मेरे अंदर एक पावर है चेंज करने की उनको. बट आई फेल्ट लाइक दैट डिड नॉट एनकाउंटर एनी टॉक्सिक मैन इन माई लाइफ. हाँ, बट एक चीज़ है कि दैट प्रॉब्लम तो सर आती ही है. अब प्रॉब्लम कौन फेस कर सकता है? योद्धा किसे बोला गया है? हु सर्वाइवर, राइट? सर्वाइवल कैसे पॉसिबल है जब आप अपने आप को चेंज करते हैं? डार्विन एंड ऑलवेज सेड दैट if you need to adapt any situation, you have to change like environment. Right? Let's take a point. अभी मेरी आदत है 24/7 AC में रहने की, राइट? माना मैं अभी चली गई ऐसी जगह पे जहाँ पे AC का कोई नामो निशान नहीं है, लाइट 15 दिन से आ ही नहीं रही है. Who can survive? A person जिसको AC की जरूरत नहीं है, या जो मॉडरेट है, या जिसकी जो 24/7 AC में रहता है, राइट? So my point is like how you have adapted to yourself. मैं बहुत भोली हूँ, मेरे पे अत्याचार होगा because I'm inviting people to प्रिया मैंने ये वो. तो जितना आप सुनते हो उतना आपको सुनाया जाता है. एक कहावत है, आप जहरीले नहीं हो, फिर भी अगर आप जहरीले बनने की कोशिश करते हो तो लोग आपके पास नहीं आते हैं. I'm not that bad, but I try to be bad so that you will never come and ask me, hey प्रिया चलो ये वो. अभी आप मेरे पास आओ, मैं आपको 4 बातें सुना दो खींच के. अभी आपके सामने आलिया भट्ट है, राखी सावंत है, आप किससे ज़्यादा के चिल्पो कर पाओगे? राखी सावंत के साथ आप भिड़ सकते हो क्या? डू यू नो हु इज राखी सावंत इवन? ओह आई एम सो सॉरी, आई थॉट लाइक आई डोंट नो. सो किसके साथ आप भिड़ सकते हो? आलिया भट्ट इज लाइक स्वीट, ए हाय हेलो. राखी सावंत इज लाइक ए क्या बोलती तू? सो द पॉइंट इज लाइक दैट, यू किसके साथ भिड़ सकते हो? आलिया भट्ट के साथ, बिकॉज शी इज स्वीट, शी इज फ्रजाइल, राइट? राखी सावंत के साथ भिड़ सकते हो, वो आपका बोलती बंद कर देगी 2 मिनट में. सो माई पॉइंट इज दैट आप अगर वनरेबल हो, आप अगर हाँ जी बिल्कुल जी, हाँ जी हाँ, तो आपकी गलती है. आज के समय पे सर मुंह से खाना लोग लेके भाग जाते हैं, ठीक है? तो अगर आप इतने ही स्वीट बन के रहे तो आपको निगल जाएगी दुनिया. सो आई फील लाइक दैट स्वीट होना अच्छा है, लेकिन आपको कोई निगल जाए इतना भी स्वीट होना अच्छा नहीं है. और इतना कड़वा भी मत हो जाओ कि लोग आपको थूक दे. यू नो, ये आप दोनों बॉयज और गर्ल्स के लिए कह रहे हो? नो, मैं जनरली लड़कियों के लिए कह रही हूँ. लड़के देखो 2 वे में आपसे बात करूँगी क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैंने लड़कों को अपनी जगह में कभी रखा नहीं है. तो मैं लड़की का एक तरह से बता सकती हूँ कि आज के टाइम पे वो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा दुनिया में निकलना छोड़ देती है, ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं. होते होंगे, टॉक्सिक मैन से रिलेशनशिप हुआ होगा, कभी उनके पेरेंट्स ने उन्हें टॉक्सिक बिहेवियर दिया होगा, कभी उनके सिस्टर्स ने उन्हें टॉक्सिक बिहेवियर दिया होगा. मैं ये कहती हूँ तुम सब दुनियादारी सब छोड़ दो, एक नया फ्लैट लो, एक नई सिटी लो, जाके बसो, अपना काम धंधा सब कुछ देखो. दुनियादारी नहीं, एक समय आएगा द पीपल आर गोइंग टू कॉल यू, ओह आई हैव नॉट टॉक टू यू सो मच, ये वो चलो बेटा घर आ जाओ, फलाना आ जाओ. दे आर गोइंग टू रिमेंबर, गोइंग टू रिमेंबर द वर्थ ऑफ यू. सब दुनिया जहाँ सारी चीज़ छोड़ दो, अपना एक नया जहान बसाओ. मेरा तो ये सिस्टम है. आपको अगर मेरी कदर नहीं है और मैं आपको अपनी कदर करवाती फिरूंगी तो मैं कदी है डोरमैट हूँ बॉस में. आप आओगे पैर पोंछ के चले जाओगे, लेकिन अगर वो डोरमैट नहीं होगा, आप पैर नहीं पोंछोगे तो फिसल के गिरोगे. देन यू विल रियलाइज द वैल्यू ऑफ द डोरमैट. सो पर्सन हैज टू लीव दैट प्लेस टू नो, टू लेट देम नो दियर इम्पोर्टेंस. आपको वो जगह छोड़नी पड़ती है, वैकेंट करनी पड़ती है, राइट? सो द सेम वे, अगर आपकी कदर नहीं है उस जगह पे और अगर आप वहाँ पे बार बार आप शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो, वो भाई छोड़ो, रूल बनाओ. जहाँ पे कदर नहीं है वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करना है. पॉइंट नंबर 1. एंड सेकेंड थिंग, बेशरम बन जाओ यार. मज़ा, बहुत मज़ा आता है बेशरम बन के. जो मज़ा है ना वो सती सावित्री बन के भोली सी, यू नो, सबका सुन के मज़ा नहीं है. जहर होगे ना तुम, उतना लोग तुमसे दूर रहेंगे. सो बी जहरीली. एंड फॉर मेल
who are like भोला स्वीट. या सच्ची बताओ, लड़कियां एट द एंड तुमसे ही शादी करने वाली है. सो मैंने 50 लड़के अगर डेट करे होंगे, मैं एट द एंड किसको चूज करूंगी? हु इज लाइक स्वीट, जेंटल, जो कल मेरी डॉटर को अपब्रिंग अच्छा करे. मतलब ये मेरे हस्बैंड में तो यही कैरेक्टर होने चाहिए. So you were saying, जैसे मैंने रेड और ग्रीन फ्लैग बोला कि be always red flag. बी ऑलवेज रेड फ्लैग. जितना रेड फ्लैग उतने टेंशन कम, उतने रिलेटिव्स कम, उतने से आप पे कम. बी ऑलवेज रेड फ्लैग. टेंशन फ्री लाइफ. Every time, even when you are settled. No. When you found out कि हाँ अब बदलना है, कि यार जिस बंदे के लिए लग जाए कि रेड फ्लैग खत्म करना है, फिर समझ जाओ कि हाँ वो प्यार हो गया, या मतलब ये सही जगह है, सही जगह पे अपन ने एंट्री ली है, एंड देन चेंज. बट अगेन आई विल टेल दैट रिलेशनशिप शुड नेवर बी लाइक कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो. रिलेशन शुड बी ऑलवेज म्यूचुअलिज्म. लाइक दोनों को ये होना चाहिए कि द रिस्पेक्ट इज देयर, एंड जहाँ पे रिस्पेक्ट खत्म होता है वहाँ पे लव खत्म होता है. फॉर मी लव इज रिस्पेक्ट. माइट बी इवन रॉन्ग. लव बहुत सारे लोग कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ होता है. लव में कुछ चीज़ें आपको भूलनी पड़ती है, ज़्यादा चीज़ें अगर आपको याद होती है. और प्यार करना मतलब थोड़ा बेवकूफ़ बनना होता है. अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आपको हर चीज़ें समझ में आ जाती है, आप इग्नोरेंट नहीं है, मतलब कुछ चीज़ें देख के भी इग्नोर करनी पड़ती है, आपको थोड़ा बेवकूफ़ बनना पड़ता है प्यार में. सो अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो आप अकेले ही रहने वाले हैं. Like you'll prefer a single life rather than being married or in a relationship. So I have almost my friend who are single because they are over intelligent. उनको सारी चीज़ें समझ में आती है, उनको बेवकूफ़ बनने नहीं आता, और रिलेशनशिप में बेवकूफ़ बनना पड़ता है सर. बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती है, तो वहाँ पे I feel like that red flag don't work. Being crazy a love language. No, I'm not saying crazy. Be ignorant. Be ignorant a love language. Ignorant is हर चीज़ें दिमाग में नहीं रहनी चाहिए. बेचैन रहते हो फिर आप, ज़्यादा आप लिंक ढूंढने लग जाते हो. ऐसा क्यों हुआ आज कुछ चीज़ें हैं, भूल जाओ. हुआ अच्छा ये कह रही है, सही कह रही है, लिंक मत करो. लिंक करोगे तो टेंशन आएगा तो क्वेश्चनिंग आएगी तो ना लड़के को पसंद है ना लड़की को पसंद है. सो जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब जो इंटेलिजेंट होते हैं वो प्यार नहीं करते, और जो प्यार नहीं करते हैं वो अकेले रहना प्रेफर करते हैं, बिकॉज उन्हें सारे दाव पेच समझ में आते हैं. या तो वो बहुत बड़ा मास्टर प्ले है कि उसको अब सब कुछ ज्ञान हो गया है, अब उसको प्यार से विश्वास ही हट चुका है, बिकॉज वो खुद भी जानता है कि यार या जानती है कि यार प्यार मतलब बेवकूफ़ बनना है, और बेवकूफ़ हम बन नहीं पाएंगे, तो लेट्स बी सेटल सिंगल अकेले. सो प्यार बेवकूफ़ों के लिए होता है, मतलब जिन्हें बेवकूफ़ बनना आता है. I should put this in reel immediately. मतलब अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आप प्यार नहीं कर सकते. The tagline of this podcast, I believe. इंटेलिजेंट है तो प्यार नहीं कर सकते. Anyways, आप मुझे बताओ ना, आप जब स्मार्ट होते हो तो आप प्यार कर सकते हो, आपको सारी चीज़ें याद हो, आप इग्नोर नहीं कर रहे हो. कभी कभी इंसान झूठ बोलता है, कभी कभी इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता, उसे प्राइवेसी चाहिए. वो आपके साथ खुल के तो नहीं आके कह सकता कि मुझे प्राइवेसी चाहिए, मुझे प्लीज़ दे दो स्पेस. वो ऐसे नहीं कह सकता, क्योंकि वो डर रहा है कि आपको हर्ट ना हो, तो वो झूठ बोलेगा, और झूठ बोलेगा तो तुम शक करोगे तो भूलोगे नहीं. ऐसे ही होता है. पर इग्नोरेंट इंसान के साथ ये केस नहीं रहेगा. नो, अगर इंसान को बेवकूफ़ बने आता है कि हाँ यार ये मेरा काट रही है या मेरा काट रहा है, फिर भी अपने को रहना है उसके साथ. नहीं यार ये ऐसे ही बोल रही होगी, ऐसे ही बोल रहा होगा, उसकी कुछ मजबूरी रही होगी, इग्नोर करने आता है, तो तुम्हारा रिलेशनशिप स्टेबल रहेगा. मेरा नजरिया हो सकता है, पता नहीं, मैंने तो ऐसे रिलेशनशिप देखे. Wonderful piece of advices in the end. And I guess that was all from my side, starting from education to relationships and piece of advices. I really loved the flow of this conversation. I hope you did too. You had a great time, because I had a great time. And me too. Again, like after such a long time, I'm expressing my views somewhere, but great. Thank you so much for being with us. That I could say, and the whole team AP is extremely grateful for this conversation. For me too, and the tea was very nice. वो मुझे पता नहीं आपने बनाई थी, कहाँ से ली थी. Which was very nice. I do not know. In the beginning, you had given me some tea. So generally मैं आई थी और मेरा headache था. But the once the conversation start और वो चाय and the माहौल, everybody
here have like lightened my mood and I went up with a very good flow. मुझे लगा आज का podcast ठीक नहीं होगा उतना क्योंकि मैं like दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, but everything was good. Before we leave the conversation, please let me know your daily routine skincare so that I can also be like हाँ हमारे प्रोडक्ट हम लड़कियों को बताइए आप अपना पहले क्या क्या करते हैं आप अपने स्किन के लिए, क्योंकि मैंने जितनी लड़कियां देखी हैं उससे सबसे खूबसूरत आप दिखे हैं मुझे लड़कियों से ज़्यादा खूबसूरत स्किन है आपके. This is way more than a compliment for me, and my guy Jay has already started recording this stuff. But honestly मैं कुछ भी नहीं करता हूँ. I only use a genuine सा आपका decent face wash. खत्म. Perfect. हम भी अब वही अब बता दीजिएगा like these are the product that I use and ये मेरा इतनी बार मैं ये कर रहा हूँ. But again, thank you so much for that compliment, ma'am. And again, thank you so much for being with us.